Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Sandal College Boys Section Online Class 2nd Year. Dear students, Assalamu alaikum. Here is Akhtar Said, your English teacher. We are discussing these days hitchhiking across the Sahara. Today is the part 4 of 4. It means today is the last lecture regarding hitchhiking across the Sahara. Page number 53 onwards. Dear students, Hitchhiking Across the Sahara has been written by G.F. Lamb. I would like to give you the review of the previous lectures so that you may be able to relate the previous story to the present one. So first of all, we read in the beginning of the lesson Hitchhiking Across the Sahara the size of the Sahara Desert that is spread over an area of 94 lakh square kilometers, many times the size of Great Britain. Number 2, how Christopher, our hero in Hitchhiking Across the Sahara, managed to get a seat in the weapons carrier by showing a letter and adhesive flies of Gardaya. Number 3, how they used strips of steel for the truck to move on, and then the driver told a story of 3 Englishmen who died in the Sahara Desert as they had only one day's water supply with them. Number 4, before Algolia, on the way, Christopher's swear thirst and then his enjoyments among the trees and pond of Algolia, because Algolia is a wonderful oasis. Number 5, the encroachment of sand on the town of Insala. Insala is fighting a desperate battle for survival and perhaps losing the contest. The sand is constantly encroaching on the town. Number 6, at last he reached Tamanrasset, and here he met Professor Claude Bellingernon, a very useful person, and the Torag people. The people living in Tamanrasset were called Torag people, who were living a primitive life but very honest and intelligent and men of dignity. Number 7, on their way to Kidal, they had nothing to eat. Then how vultures waited to eat white or black meat. Number 8, they had to slaughter a camel and got fluid from its stomach to drink. It was really a very difficult part of the story to read. Number 9, his stay at the land of thirst and death and severe sandstorm. And ultimately he reached Timbuktu, and this is how he covered 3,200 kilometers of the grim desert. But his main story, his main adventure did not end here. He had to go further. Let's read what happened next. Dear students, here we'll discuss 2 questions. Number 1, what sudden decision was made? Number 2, what was the arrangement? A sudden decision was made. एक फौरी फैसला किया गया. वो अब टिम्बकटू में पहुंच चुके थे क्रिस्टोफर. उन्होंने फैसला किया कि मैं मज़ीद इस सहरा को देखूंगा. तो उन्होंने क्या किया? He sent a telegram to Professor Claude Bellingernon in Tamanrasset and then flew rapidly eastward. और वो खुद जहाज़ में बैठ के किधर चला गया? By plane, partly across the land of thirst and death, across which he had so painfully toiled. Toiled means struggled, labored, so painfully struggled, so painfully labored. आपको याद होगा the land of thirst and death was notorious for sandstorms. और किस तरह से वो तूफ़ान आ गया था रेत का, और किस तरह से वो बिल्कुल दब के रह गया था. और उसे याद आया वो 1200 कैमल्स का कारवां जो इसी तरह के तूफ़ान में कहीं दब गया होगा. From Agadez he travelled north to meet Bellingernon, partly in a hired jeep with a French lieutenant, partly by camel. The arrangement was that
The professor would drive south in his jeep from Tamanrasset to a well at In Aban Garret. इन एबन गैरेट एक छोटी सी जगह थी जहां उन दोनों ने आपस में मिलना था। उन दोनों के दरमियान ये अरेंजमेंट तय पाया जो टेलीग्राम के ज़रिए उन्होंने प्रोफेसर क्लॉड बेलिंगरनन को लिख दिया। वेयर प्रोफेसर वुड वेट फॉर हिम, उस एबन गैरेट में वो पहुंचकर वो उनका इंतज़ार करेंगे। इफ़ क्रिस्टोफर हैड नॉट आफ्टर ऑल रीच्ड इट बाय द अपॉइंटेड डे, और अगर मुकर्ररा दिन तक क्रिस्टोफर उस जगह पर यानी इन एबन गैरेट पर नहीं पहुंच पाएंगे तो क्या होगा, ये क्या तय पाया, क्या अरेंजमेंट था। देन प्रोफेसर बेलिंगरनन वुड कंटिन्यू साउथ ऑन द प्रिमिटिव रोड्स, on the primitive road, primitive very old ancient road towards Agadez, यानी कि वो एगाडीज की तरफ आते रहेंगे। मैं आपको ये सारा एक नक्शे की मदद से भी समझाने की कोशिश करता हूँ। Here he reached Agadez and this is Tamanrasset. I would like to explain it here. For example, this is Agadez and here this is Tamanrasset. The arrangement was that was discussed in the telegram that Christopher यहाँ से चलेंगे इस रोड पर इस तरफ, और जो प्रोफेसर क्लॉड बेलिंगरनन है वो टमनरैसेट से इस पुराने रूट पर इस तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ एक जगह थी जिसका अभी हमने जिक्र किया, इन एबन गैरेट, वहाँ उनकी मुलाकात हो जाएगी। अगर क्रिस्टोफर मुकर्ररा वक्त पर यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं तो ये तय पाया कि प्रोफेसर क्लॉड बेलिंगरनन यहाँ फिर वेट नहीं करेंगे बल्कि आगे उसी सफ़र जारी रखेंगे और उसी रूट पर आगे चलते आएंगे तो कहीं रास्ते में ज़रूर मुलाकात हो जाएगी। ये उनका प्लान था, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या वो अभी आगे पढ़ते हैं। Here we'll discuss two questions. Number one, why did caravan take lengthy detour and how many days did it consume? Number two, who took Christopher to the well? Unfortunately, the caravan with which Christopher was traveling insisted on making a lengthy detour roundabout route to water their camels at a well some distance from the road. उन्होंने कहा कि इस रोड से कुछ फासले पर एक कुआं है और वो अपने कैमल्स को वहाँ पानी पिलाना चाहेंगे। दी अमेरिकन इंसिस्टेड, अमेरिकन कौन है, यानी ये क्रिस्टोफर खुद। दी अमेरिकन इंसिस्टेड ऑन गेटिंग बैक टू द रोड अगेन एज सुन एज पॉसिबल। उसने बड़ा कहा कि जल्दी वापस चलें क्योंकि उसे डर था कि अगर वो प्रोफेसर क्लॉड बेलिंगरनन वहाँ पहले पहुँच गए तो वो फिर आगे चले जाएंगे तो वो तो रूट पे नहीं मिलेंगे तो परेशानी होगी। एक्सप्रेसिंग हिम विगरसली मीन्स फोर्सफुली, एनर्जेटिकली, टू द लीडर बाई साइंस, उसने इशारों से बड़े ज़ोरदार तरीके से उसको बताने की कोशिश की। एज दे कुड नॉट स्पीक ईच अदर्स लैंग्वेज, क्योंकि वो एक दूसरे की ज़ुबान नहीं जानते थे। बट बाई द टाइम दे गॉट बैक टू द रोड 2 days had been lost. I must say, unfortunately, 2 days had been lost. The caravan presently left the route. Presently, soon. जल्द ही कारवान ने वो रास्ता छोड़ दिया, वो वापस उस रास्ते पे तो आ गए जिस रास्ते पे क्रिस्टोफर ने आगे जाना था, लेकिन उन्हें फिर आगे जाके उन्होंने रास्ता बदल लिया। बट अ बॉय एक्टेड एज अ गाइड टू लीड क्रिस्टोफर to the well at In Aban Garret. It was reached just at the nightfall. The following morning, the boy went back, leaving Christopher alone to wait the arrival. अगली सुबह क्या होता है, वो जो लड़का था जो उसे छोड़ने के लिए आया वो उसे वहाँ छोड़ के तो चला गया। As he supposed of the professor from the north, जैसा कि उसे यकीन था कि प्रोफेसर क्लॉड बेलिंगरनन नॉर्थ से आएंगे, चूँकि उनके दरमियान तय हुआ था कि वो साउथ की तरफ सफ़र करेंगे। Here we'll discuss 3 questions, very short paragraphs and very short questions, but all are very important, I must tell you. Number 1, define a boj. Number 2, what did shock Christopher? Number 3, how did he try to draw water? All the questions are very important from the examination point of view. There is no village at In Aban Garret.
इन एबन गैरेट के मकाम पर कोई गांव नहीं था, बस क्या था, दी ओनली बिल्डिंग इज़ अ बोझ। वहाँ सिर्फ एक ही बिल्डिंग थी, वो एक छोटा सा बोझ था। उसको क्या बोझ किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, विच इज़ अ सिंपल मड स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ अ रूफ एंड फोर वॉल्स। एक गारे और कीचड़ का मट्टी का बना हुआ एक छोटा सा हट सा था जिसमें छत थी और 4 दीवारें थीं, विद वन होल टू सर्व एज अ विंडो एंड another to serve as a door. The well is about 275 मीटर्स अवे, और वहाँ उस बोर से जो कुआं था वो तकरीबन 275 मीटर्स अवे था। When he reached it, he had a shock. जब क्रिस्टोफर वहाँ पहुँचे उस वेल पर, कुएं पर, तो उनको बड़ा सदमा हुआ। देयर वॉज वाटर देयर, ऑल राइट, पानी वहाँ था, बट इट वॉज अ गुड 46 मीटर्स बिलो, लेकिन ये कोई 46 मीटर्स नीचे था। बिल्कुल ऐसे ही था जैसे हमने वो बचपन में कहानी सुनी थी प्यासा कौवा, कि पानी तो था कुएं में लेकिन काफ़ी नीचे था। एंड देयर वॉज नाइदर रोप नार बकेट, और ना ही वहाँ को रस्सी थी और ना ही वहाँ कोई डोल या बाल्टी वगैरह थी जिसके ज़रिए से पानी कुएं में से निकाला जा सकता। He returned to the बोझ and searched his pack. उसने अपने पैक को तलाश किया कि क्या कोई ऐसी चीज़ मिल सकती है जिससे वो पानी निकाल सके। The only possible container to bring up the water was a small metal teapot. उसके पास एक छोटा सा टी पॉट था, चाय की केतली की तरह का छोटा सा, which would carry about half a cup full of liquid at a time, जो एक वक्त में आधा कप पानी का वहाँ से निकाल सकता था। इफ़ अ लाइन वॉज टाइड टू द हैंडल, अगर उसके हैंडल के साथ एक रस्सी बांध दी जाए, एंड द स्पाउट प्लग्ड अप। अब स्पाउट कहते हैं नोज़ल को, होल को जहाँ से चाय निकालते हैं। प्लग्ड अप, स्टॉप्ड, क्लोज्ड, अगर उसकी उस नोज़ल को बंद कर दिया जाए किसी तरीके से और उसके हैंडल के साथ एक रस्सी बांध दी जाए, तो एक वक्त में कोई हाफ अ कप फुल, कोई आधा कप पानी का निकाला जा सकता था। लेकिन वो निकालना कैसे था? इट वॉज इटसेल्फ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। हेयर we'll discuss 2 questions. Number 1, why did Christopher tear his turban? उसने अपनी पगड़ी क्यों फाड़ी? Number 2, why did he not use his sleeping bag to increase the length of the rope? उसने अपना स्लीपिंग बैग क्यों नहीं फाड़ा? चूँकि वो 46 मीटर्स बिलो पानी था और उसके पास कोई रस्सी नहीं थी। A line tied to the handle, but where was the line? लेकिन वो रस्सी कहाँ थी? वो तो परेशान हो गया कि अब क्या किया जाए। फास्टनिंग टुगेदर, फास्टनिंग टाइंग, आपस में बांध कर, ऑल दी अवेलेबल बिट्स ऑफ कॉर्ड एंड आर्टिकल्स ऑफ क्लोथिंग, ही कुड एट फर्स्ट मेक ओनली 8 मीटर्स। तो वो पहल सिर्फ 8 मीटर ही वो एक छोटी सी रस्सी बना पाया, जबकि अभी तो बहुत ज़्यादा रस्सी की ज़रूरत थी। ऑन एन इंस्पिरेशन, इंसाइट, आइडिया, ऑन एन इंसाइट, ऑन एन आइडिया, ही टोर द टर्बन ही वॉज वेयरिंग। उसने सोचा ये ज़िंदगी ज़्यादा ज़रूरी है। उसने अपनी टर्बन फाड़ी इंटू 4 स्ट्रिप्स, उसको 4 हिस्सों में फाड़ दिया। स्टिल द टी पॉट रीच्ड नो मोर देन हाफ वे डाउन द वेल, जबकि जो टी पॉट था वो आधे रास्ते से भी ज़्यादा ना पहुंच पाया। व्हाट एल्स? अब परेशान हो गया, अब और क्या किया जाए। हिज स्लीपिंग बैग, क्या उसका जो स्लीपिंग बैग है वो फाड़ दिया जाए? वो खुद से सोच रहा है। साथ ही ख्याल आया, नो, फॉर इट वॉज नाउ द विंटर सीजन, क्योंकि अब सर्दियों का मौसम था। विच मेंट दैट द नाइट्स वर बिटरली कोल्ड। सहारा में सर्दियाँ रात के वक्त जब हों तो बहुत सर्दी होती है और दिन के वक्त गर्मी होती है। ऑल्दो द डेज बाय नॉर्मल स्टैंडर्ड्स वर स्टिल अनबेरेबली हॉट, जबकि आम म्यार के मुताबिक, नॉर्मल स्टैंडर्ड के मुताबिक दिन के वक्त अभी भी इंतहाई गर्मी थी। बट नाइट्स वर बिटरली कोल्ड। विदाउट अ स्लीपिंग बैग और ब्लैंकेट ही वुड फ्रीज टू डेथ। उसे अंदाज़ा था कि अगर उसने अपना स्लीपिंग बैग फाड़ लिया या ब्लैंकेट जो है उसको फाड़ दिया तो वो तो सर्दी की वजह से जम के ही मर जाएगा। दैट नाइट ही ले इन हिज स्लीपिंग बैग पिक्चरिंग हिमसेल्फ डाइंग ऑफ थर्स्ट एंड हंगर। अब उसे ये डर था कि वो
थर्स्ट और हंगर, प्यास और भूख के मारे वो मर जाएगा, तो खुद से सोच रहा है कि उसकी क्या हालत होगी, वो तो बस मरने के करीब है। इफ़ द प्रोफेसर डिड नॉट अराइव इन द नेक्स्ट डे आर टू, कि अगर प्रोफेसर अगले 1 या 2 दिनों में वहाँ नहीं पहुँचते हैं, प्रोफेसर क्लॉड बेलिंगरनन, तो वो तो प्यास और भूख के मारे ही वहाँ मर जाएगा, और तसव्वुर में उस पिक्चर को देख रहा है, उस मंज़र को देख रहा है, अपने मरते हुए मंज़र को। Here, dear students, we'll discuss 2 questions. Number 1, how finally did the idea of a rope occur to his mind? आखिर किस तरह से उसके दिल में, उसके जहन में ये ख्याल आया कि रस्सी कैसे हासिल की जा सकती है। Number 2, what did dawn on him and how did it work? आखिर उसके क्या ख्याल आया और उसने फिर क्या उसका ये हरबा जो था वो काम कर पाया। He had with him a small recording machine. उसके पास एक छोटी सी रिकॉर्डिंग मशीन थी जिसमें वो अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते थे। द नोशन ऑफ डेथ, नोशन मीन्स आइडिया, द आइडिया ऑफ डेथ सजेस्टेड टू हिम दैट इट माइट बी अ गुड आइडिया टू रिकॉर्ड हिज लास्ट थाट्स, कि वो मरने से पहले अपने आखिरी ख्यालात को उसमें रिकॉर्ड कर दे। वाई? फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु फाउंड हिज बॉडी, उन लोगों को फ़ायदा पहुंचाएगा जिनको उनकी लाश मिली कि उसकी आखिरी वो बातें क्या थीं। द सेट वॉज बैटरी ऑपरेटेड विद थिन वायर एज द रिकॉर्डिंग मीडियम। वायर, जैसे ही वायर का ख्याल आया तो उसे याद आ गया कि वायर से तो वो रस्सी भी बना सकता है। इट dawned on him, dawned on him इडियम है जिसका मतलब है came to mind, occurred to his mind, उसको ख्याल सूझा suddenly that here was the rope he needed to reach the water in the well, कि yes ये वो रस्सी है उसके पास जो उसको ज़रूरत है पानी निकालने के लिए उस वेल से। The wire was very thin, little thicker than a human hair, वो जो वायर थी बड़ी पतली सी थी, इंसानी बाल से थोड़ी ही वो थिक होगी, घनी होगी, बट इट वॉज अबाउट 305 मीटर्स लॉन्ग, लेकिन ये 305 मीटर लंबी ज़रूर थी। बाई पुटिंग सेवरल स्ट्रैंड्स टुगेदर, स्ट्रैंड्स मीन्स पीसीज ऑफ थ्रेड, उसके काफ़ी सारे टुकड़ों को आपस में जोड़कर इट शुड बी पॉसिबल टू मेक अ लाइन स्ट्रॉन्ग एनफ, कि इतनी मजबूत वो ज़रूर रस्सी बन जाएगी टू बेयर द वेट ऑफ अ स्मॉल टी पॉट हाफ फुल ऑफ वाटर, कि वो टी पॉट जिसमें तकरीबन आधा कप पानी का हो उसका वज़न उठा सके। द स्कीम वर्कड, 7 strands ऑफ वायर, उसने उस रस्सी के 7 पीसीस को आपस में जोड़ा। लेबोरियसली ट्विस्टेड टुगेदर, लेबोरियसली स्ट्रेनुअसली, इंतहाई सख्त मेहनत के साथ उनको आपस में उसने जोड़ा। जस्ट रीच्ड कंफर्टेबली टू वाटर लेवल इन द वेल, जिसकी वजह से वो जो रस्सी थी, और रस्सी की मदद से वो जो टी पॉट था वो बहुत ही कंफर्टेबली नीचे वाटर लेवल तक पहुंच गया, एंड दिस इज़ हाउ ही वॉज एबल टू गेट वाटर। Here, dear students, we will discuss 2 questions. Number 1, what type of liquid did Christopher get? Number 2, how was Christopher finally saved and who saved him? The liquid brought up in the teapot was not particularly inviting. Inviting, tasteful, pleasant. Water was not particularly tasteful, not particularly pleasant. It was like a mixture of mud and sulfur. ये कीचड़ और सल्फर गंध का जो होता है मिक्सचर सा लग रहा था, but it was drinkable, लेकिन पीने के काबिल ज़रूर था। and it would save him from dying of thirst. उसने सोचा कम से कम ये उसे प्यास के मारे मरने से तो बचा लेगा ना। He spent the whole morning drawing up पॉटफुल आफ्टर पॉटफुल, पूरी सुबह वो एक एक वो कप करके वहाँ से पानी का निकालता रहा। एंड वॉज एबल टू कलेक्ट 523 लीटर्स टू टेक बैक टू द बोझ, और इस तरह से वो 5 लीटर पानी बोझ तक लाने में कामयाब हो गया। द फॉलोइंग इवनिंग एज ही सैट आउटसाइड द बोझ, अगली शाम जब वो बोझ के बाहर बैठा था, स्टेयरिंग ओनली हाफ कॉन्शियसली एट द होराइजन, और बेध्यानी से बेख्याली में वो उफ़क़ की जानब देख रहा था। होराइजन स्काई लाइन, स्काई लाइन में पहले भी वजाहत कर चुका हूँ, जहाँ ज़मीन और आसमान आपस में मिलते दिखाई देते हैं, उस लाइन को होराइजन कहते हैं, स्काई लाइन। He noticed a small sandstorm.
उसने हल्का सा एक ऐसे उसको महसूस हुआ जैसे रेत का तूफान छोटा सा उठा है, ब्लोइंग वेगली इन हिज डायरेक्शन। वेगली, अनक्लियरली, जो गैर मुबहम तरीके से ऐसे लग रहा था जैसे वो तूफान उसी की तरफ आ रहा है। कुड इट बी द डस्ट रेस्ड बाय अ कार? क्या ये डस्ट हो सकती है जो कार की वजह से पैदा हुई हो? नो, देयर वॉज टू मच ऑफ इट फॉर दैट। लेकिन नहीं, कार से कहीं ज़्यादा वो डस्ट लग रही थी। देयर वॉज इंडीड टू मच डस्ट टू बी रेस्ड बाय अ स्मॉल जीप। काफ़ी ज़्यादा डस्ट उठ रही थी, बट इट वॉज अ रेस्क्यू पार्टी। एक्चुअली इट वॉज अ रेस्क्यू पार्टी जो उसी को बचाने के लिए आई थी। नॉनदलेस, ताहम उसी को बचाने के लिए आई थी। टू बिग डेजर्ट पेट्रोल कार्स केम रोरिंग अप टू द बोर्ज। दौड़ते हुए वो बोर्ज के सामने आके रुकी। एंड डेथ रिलक्टेंटली डिपार्टेड, और मौत हिचकिचाते हुए उसके पास से दूर चली गई। रिलक्टेंटली मीन्स unwillingly, hesitatingly. Reluctantly has different color. It means this word is also included in your MDCAT vocabulary, so try to learn it in a very good way. इसके जितने भी सिनोनिम हैं और एंटोनिम्स हैं मैंने भी नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिए हुए हैं। Dear students, here we'll discuss two questions. Number one, what was the mishap that caused them 2 days detour? वो क्या मिसहैप था, वो बदकिस्मती थी जिसकी वजह से उन्हें 2 दिन का डिटूर करना पड़ा। नंबर 2, हाउ डिड बेलिंगरनन्स फोरसाइट सेव्ड क्रिस्टोफर? किस तरह से बेलिंगरनन की फोरसाइट ने क्रिस्टोफर को बचा लिया। Claude Bellingernon and a friend arrived a few hours later in the jeep. What had happened was that they had missed meeting Christopher during the unfortunate 2-day detour. Unfortunate means अनलकी, वो जो बदकिस्मत डी टूर था जिसकी वजह से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। वो डी टूर आपको याद है ना कि जब कारवान ने कहा था हमने अपने ऊँटों को पानी पिलाना है तो उन्हें रास्ते से हटना पड़ा। तो वो मैं आपको नक्शे की मदद से समझाना चाहूँगा कि असल में हुआ क्या था। डियर स्टूडेंट्स, ये वो मैप है सहारा डेजर्ट का। अब यहाँ एगाडिस है, यहाँ क्रिस्टोफर ठहरे हुए थे। इन्होंने टमन रेसट में ठहरे हुए प्रोफेसर क्लॉड बेलिंगरनन को टेलीग्राम लिखा। वो मैं आपको इस नक्शे की मदद से समझाना चाहता हूँ। फ़र्ज़ करें ये एगाडिस है और ये वाला जो मकाम है ये टमन रेसट है, यहाँ प्रोफेसर क्लॉड बेलिंगरनन रहते हैं। उनके दरमियान तय पाया कि क्रिस्टोफर यहाँ से इस रास्ते पर चलेंगे और उधर से टमन रेसट से प्रोफेसर क्लॉड बेलिंगरनन इस रूट पे इस तरफ आएंगे। और यहाँ एक मकाम था जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, इन एबन गैरेट, यहाँ इनकी मुलाकात हो जाएगी। अब हुआ क्या, वो जब क्रिस्टोफर अपने कारवान के साथ यहाँ से चले तो रास्ते में जो कारवान था उन्होंने कहा कि हमने अपने ऊँटों को पानी पिलाना है, जिसकी वजह से उन्हें मेन रास्ते से हटना पड़ा। तो जब ये अपने ऊँटों को पानी पिला के वापस इस रास्ते पर दोबारा आए तो 2 दिन गुजर चुके थे। और इतने 2 दिनों में जो प्रोफेसर क्लॉड बेलिंगरनन थे वो यहाँ पहुँचे। उनके दरमियान ये तय था कि अगर इन एबन गैरेट में क्रिस्टोफर ना पहुँचे तो प्रोफेसर इसी रास्ते पर आगे चलते चले आएंगे। ज़ाहिर है वो इसी रास्ते पे होंगे तो उनकी मुलाकात हो जाएगी। अब यहाँ एक लड़के ने मिसगाइड कर दिया प्रोफेसर क्लॉड बेलिंगरनन को कि क्रिस्टोफर वापस चले गए हैं एगाडिस, तो वो भी आ गए, एगाडिस आ गए। यहाँ जब उन्हें क्रिस्टोफर नहीं मिले तब उन्हें गलती का एहसास हुआ कि क्रिस्टोफर तो इन एबन गैरेट में प्यासे और भूखे वो तो मरने के करीब होंगे। तो वो फ़ौरन उन्होंने डेजर्ट पेट्रोलिंग पार्टी से रब्ता किया और 1-2 इधर भेज दी, 1-2 इधर भेज दी और ख़ुद और एक इधर भी भेज दी इन एबन गैरेट में। और वो ख़ुद भी अपने एक दोस्त के साथ इन एबन गैरेट की तरफ चल पड़े। और जो क्रिस्टोफर थे वो वाकई इन एबन गैरेट थे। इस तरह से उनकी जान बचाई गई। अब दोबारा टेक्स्ट पढ़ते हैं कि टेक्स्ट में कैसे लिखा है। डियर स्टूडेंट्स, ये वही है जो डेजर्ट के मैप से पहले हम पढ़ रहे थे। दे हैड लेटर बीन मिसडायरेक्टेड बाय अ नेटिव। मिसडायरेक्टेड
मिसगाइडेड, उन्हें गलत गाइड कर दिया गया बाय अ नेटिव. नेटिव मीन्स लोकल. डिफरेंट कलर, यू नो दिस वर्ड नेटिव इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन योर MD CAT vocabulary. They had later been misdirected by a native who thought क्रिस्टोफर हैड रिटर्न टू एगाडिस, जिसका ख्याल था कि शायद जो क्रिस्टोफर है वो वापस एगाडिस चले गए हैं. व्हेन दे मीन्स प्रोफेसर क्लॉड बेलिंगरनन एंड हिज फ्रेंड रीच्ड एगाडिस एंड डिस्कवर्ड द नेटिव्स एरर. वहाँ जब वो पहुँच गए तो उस लोकल आदमी की गलती का एहसास हुआ. बेलिंगरनन रियलाइज्ड दैट क्रिस्टोफर मस्ट हैव मिस्ड देम ऑन द रोड. उन्हें एहसास हुआ कि शायद उस रोड पे वो कहीं एक दूसरे को वो उन्होंने खो दिया है. एंड दैट ही वॉज प्रोबेबली वेटिंग एट इन एबन गैरेट, और वो गालबन यानी क्रिस्टोफर तो इन एबन गैरेट में बैठे वेट कर रहे होंगे. शॉर्ट ऑफ फूड, उनके पास तो खाने को भी कुछ नहीं है, और ना को उनके पास गाड़ी थी, ना उनके पास कोई ऊँट था. वो तो वैसे ही बैठे होंगे, तो वो तो भूखे मर जाएंगे. ही प्रोफेसर क्लॉड बेलिंगरनन वेरी सेंसिबली, बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए, गाट इन टच विद द डेजर्ट पेट्रोल. उसने डेजर्ट पेट्रोल से रब्ता किया. एंड दे सेंट आउट 4 ट्रक्स टू कवर द डेजर्ट नॉर्थ फ्रॉम एगाडिस. और उन्होंने एगाडिस से नॉर्थ की जानब पूरे डेजर्ट को कवर करने की कोशिश की कि एक इधर भेज दी, एक दूसरी तरफ भेज दी. फ्रॉम एगाडिस एंड इन पर्टिकुलर टू विजिट इन एबन गैरेट. और एक गाड़ी को जो डेजर्ट पेट्रोल थी उसको इन एबन गैरेट ज़रूर भेजा कि आप वहाँ ज़रूर जाएं. हिज फोरसाइट. फोरसाइट मीन्स प्रूडेंस, विजडम. हिज प्रूडेंस, हिज विजडम सेव्ड क्रिस्टोफर्स लाइफ. हुज विजडम, हुज प्रूडेंस, हुज फोरसाइट? प्रोफेसर क्लॉड बेलिंगरनन when he reached Agadis. His foresight saved Christopher's life and enabled the hitchhiking journey across the Sahara to end in a return to the Hoggar region instead of in a sandy grave in the heart of the desert. तो उनकी foresight ने ज़ाहिर है उनको बचाया, वरना उनकी कब्र उधर रेत में सहारा में कहीं बनी हुई होती. This is how the lesson comes to an end. I hope you might have enjoyed this lesson. If you have any problem, if you have any question, you may comment in the comment section below. I'll be there to answer your questions. Till some next lecture, take a very good care of yourself and your dear ones. Thank you very much.